हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मनप्रीत एंड वेलकम आपका नर्सिंग स्कूप यूट्यूब चैनल पे। सो वी आर डिस्कसिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज फॉर अपकमिंग ऑल स्टाफ नर्सेज एग्जाम और नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम. And all these questions and MCQs are very very important if you are going to appear for NCLEX exam as well. So watch the video till the end, and at the end of the video, if you like the content, you like the videos, then you can support us by liking, sharing, and by providing your feedback in the comment section. So without wasting more time, let's start the video. सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है, एंड इससे पहले हमने 40 क्वेश्चन अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करे हैं. सो दिस इज अ पार्ट थर्ड. So a client arrives at an emergency department and complaining of the back pain. So the patient reports the taking of at least 3 acetaminophen tablets every 3 hours for past 1 week without any relief. So which of the following symptoms suggest the acetaminophen toxicity or acetaminophen poisoning? So here the options are tinnitus, diarrhea, hypertension or hepatic damage. So acetaminophen, if taken in large doses, then this can lead to the hepatic damage, as acetaminophen is a hepatotoxic drug. ठीक है. सो अब acetaminophen टॉक्सिसिटी अगर हो गई तो आप कौन सा एंटीडॉट दोगे? सो अब कौन सी ड्रग दोगे टू ट्रीट द acetaminophen पॉइजनिंग? सो उसका आंसर होगा N-एसिटाइल-सिस्टीन. सो जो टिनाइटस होता है, टिनाइटस इज अ साइड इफेक्ट ऑफ द एस्पिरिन. सो जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग्स हम कॉमनली यूज करते हैं उनके साइड इफेक्ट्स, एडवर्स इफेक्ट आपको पता होने चाहिए. सो acetaminophen टॉक्सिसिटी कैन कॉज द हेपेटिक डैमेज एंड टिनाइटस इज अ साइड इफेक्ट ऑफ द एस्पिरिन. ओके, and diarrhea and hypertension is not caused by the acetaminophen. So let's move to the next question. So next question is, a nurse is caring for a cancer patient receiving the subcutaneous morphine sulfate for a pain. So morphine sulfate is a opioid drug. It is the opioid agonist. So which of the following nursing action is most important in care of this patient? So options are monitor the urine output, monitor respiratory rate, monitor the heart rate, or monitor the temperature. सो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था कि जो मॉर्फिन सल्फेट होती है, दिस एक्चुअली सप्रेस द रेस्पिरेटरी सिस्टम. ओके, सो जो कफ रिफ्लेक्स होता है उसको भी ये सप्रेस करती है. सो इफ दिस ड्रग इज सप्रेसिंग द रेस्पिरेटरी सिस्टम, देन यू हैव टू मॉनिटर द रेस्पिरेटरी रेट रेगुलरली. ओके, सो हियर द राइट ऑप्शन कौन सा होगा? फिर ऑप्शन बी होगा. सो मॉर्फिन सल्फेट डजंट अफेक्ट द यूरिन आउटपुट और हार्ट रेट और टेम्परेचर. सो हियर द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. Okay, so with this, moving towards the next question. So next question is, a post-operative client has a epidural infusion of the morphine sulfate. The patient respiratory rate declines to 8 breath per minute. So जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ऊपर देखा कि morphine sulfate can cause the respiratory depression, and due to that adverse effect यहाँ पे patient का respiratory rate हो गया decline, 8 breath per minute है. So which medication would nurse anticipate एडमिनिस्ट्रेंट? सो कौन सी मेडिकेशन होगी इन केस ऑफ मॉर्फिन सल्फेट टॉक्सिसिटी? ऑप्शंस हैं नालोक्सिन, एसिटाइलसिस्टीन, मिथाइल प्रेडनिसिलोन और प्रोटामिन सल्फेट. सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है डेट इज ऑप्शन ए, नैलोक्सोन, बिकॉज नैलोक्सोन इज द ओपियड एंटागोनिस्ट. सो इट इज द एंटीडोट ऑफ द मॉर्फिन सल्फेट. ठीक है. सो एसिटाइलसिस्टीन मैंने अभी आपको बताया कि अगर acetaminophen पॉइजनिंग होती है तब आप देते हो. मिथाइल प्रेडनिसोलोन क्या है? इट इज अ कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग. एंड प्रोटामिन सल्फेट हम देते हैं इन केस ऑफ द हेपेरिन ओवरडोज. सो हियर द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. So let's move to the next question. Okay, so next question is, a nurse on a cardiac unit is preparing to administer the medication after receiving the morning change of shift report. So which medication should nurse administer first? So firstly कौन सी medication वो administer करेगी? ऑप्शंस हैं कार्डियक ग्लाइकोसाइड मीन्स के डाइजॉक्सिन हो सकती है टू द क्लाइंट हु हैज़ एपिकल पल्स ऑफ 58. सो ये तो बिल्कुल गलत ऑप्शन है, बिकॉज अगर एपिकल पल्स 60 से कम है, बिलो 60 है, देन आप डाइजॉक्सिन नहीं दोगे. नेक्स्ट इज लूप डायूरेटिक टू द क्लाइंट हु इज हैविंग अ सीरम पोटाशियम लेवल 3.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर. सो लूप डायूरेटिक आप नहीं दे सकते हो बिकॉज अ पेशेंट इज हैविंग अ डिक्रीज सीरम पोटाशियम लेवल. सो नॉर्मल कितना होता है सीरम पोटाशियम?
it is the 3.5 to 5.1 milliequivalent per liter. So next is antidysrhythmic to a client in ventricular fibrillation. So ventricular fibrillation is very life threatening condition, and in this you have to administer the antidysrhythmic medication. So this is the priority. Okay, so यहाँ पे medication nurse सबसे पहले देगी. So next है calcium channel blocker who has a blood pressure 110/68. So 110/68 is not a case of hypertension. So calcium channel blockers are usually given as a hypertensive drug. So here the right option is option C, antidysrhythmic to the client with ventricular fibrillation. Okay, so with this, moving towards the next question. Okay, so next question is, a nurse on a cardiac unit has received shift report from the outgoing nurse. So which client should nurse assess first? So priority का question है, prioritization का. So the client who has just brought to the unit from the emergency department with no report of complaints. So patient cardiac unit में आया है but उसको अभी currently कोई complaint नहीं है. Next है client who has received the pain medication 30 minutes ago for the chest pain and was a level 3 on 1 to 10 पेन स्केल. सो लेवल 3 है तो ये पेशेंट वेट कर सकता है. सो इसको हम कंसिडरेशन में रख सकते हैं ऑप्शन ए को. सो ये तो नहीं होएगा यहाँ पे. सो नेक्स्ट इज अ क्लाइंट हु हैड अ कार्डियक कैथेटराइजेशन इन अ मॉर्निंग एंड हैज पाल्पेबल pedal pulses bilaterally. So pedal pulses palpable हैं. So here the patient is okay. So nurse can assess this patient later on. So ये first priority नहीं बनेगा. So next is the client who has been turning on a call light frequently and stating her care has been neglected. So यहाँ पे थोड़ा साइकोलॉजिकल कंसर्न आ रहा है एंड एज पर मास्लो हायरार्की थ्योरी नीड्स यू हैव टू गो फॉर द फिजियोलॉजिकल प्रायोरिटी नीड्स. ओके, सो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऑप्शन जो ए है जिसमें कि पेशेंट अभी कार्डियक यूनिट में आया है फ्रॉम द इमरजेंसी डिपार्टमेंट बट अभी उसको करंटली कोई कंप्लेंट नहीं है. सो नर्स ने सबसे पहले ऐसे पेशेंट को असेस करना होता है बिकॉज द पेशेंट मे और मे नॉट बी स्टेबल. सो कौन सी चीफ कंप्लेंट्स के साथ पेशेंट को इमरजेंसी डिपार्टमेंट में एडमिट करा गया था वो आपने पूरा असेस करना है बिकॉज अभी तक आपको नहीं पता है कि पेशेंट स्टेबल है या नहीं है. सो यहाँ पे राइट ऑप्शन आएगा ऑप्शन A. So with this, moving towards the next question. So the next question is, which client should be telemetry nurse assess first after receiving morning shift report? So again prioritization का question है. So nurse कौन से patient को सबसे पहले assess करेगी? Options हैं the client diagnosed with the DVT, deep vein thrombosis, who has a edematous right calf. So next है client diagnosed with the mitral valve stenosis and has a heart palpitations. So next है the client diagnosed with the arterial occlusive disease and has a intermittent claudication. And option D है the client diagnosed with a congestive heart failure who has a pink frothy sputum. सो यहाँ पे जो पिंक फ्रॉथी स्पूटम लिख दिया है दिस इज अ साइन ऑफ द पल्मोनरी एडिमा. दिस कैन बी सीन इन अ हार्ट फेलियर पेशेंट पल्मोनरी एडिमा एंड एक्चुअली दिस पल्मोनरी एडिमा इज अ मेडिकल emergency which results from the left ventricular failure, and if the pulmonary edema not treated then this can lead to the death of the patient. तो यहाँ पे जो फर्स्टली आप जिस पेशेंट को असेस करोगे वो होगा कंजस्टिव हार्ट फेलियर का पेशेंट जिसको पिंक फ्रॉथी स्पूटम आ रहा है बिकॉज यहाँ पे हार्ट फेलियर के साथ साथ पल्मोनरी एडिमा हो रहा है पेशेंट को. तो जो बाकी कंडीशंस हैं ये उनके एक्सपेक्टेड साइंस हैं, इनको आप बाद में असेस कर सकते हो बट जो फर्स्ट प्रायोरिटी बनेगी वो बनेगी ऑप्शन डी की. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ चार्ज नर्स इज मेकिंग अ असाइनमेंट फॉर अ क्लाइंट ऑन अ कार्डियक यूनिट. So which client or patient should the charge nurse assign to the new graduate nurse? So अभी new graduate nurse को कौन सा patient assign कर सकती है charge nurse? So options हैं 24-year-old client diagnosed with a myocardial infarction. So MI का patient है. So अभी हो सकता है कि वो stable ना हो. So इसलिए आप newly graduate nurse को ये patient नहीं दोगे. So next is 65-year-old client admitted with the unstable angina. So actually this unstable angina is very life threatening condition
एंड इसको हम प्री इन्फेक्शन एंजाइना भी बोलते हैं। एंड इसमें जो होता है स्टेबल और अनस्टेबल में डिफरेंस क्या होता है कि स्टेबल एंजाइना में जो पेशेंट को पेन होगी वो होगी जब पेशेंट कोई एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, बट इसमें एट रेस्ट भी पेशेंट को पेन होगी, चेस्ट पेन होगी, एंड जो पेन होती है वो 15 मिनट से ज़्यादा तक रह सकती है, ठीक है, 15 मिनट से ज़्यादा होगी। और अगर आप पेशेंट को नाइट्रोग्लिसरीन दोगे तब भी पेशेंट की चेस्ट पेन रिलीव नहीं होगी। सो दिस इज द अनस्टेबल एंजाइना एंड दिस इज एक्चुअली वेरी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। सो इस पेशेंट को भी आप न्यूली ग्रेजुएट नर्स को नहीं दोगे। सो नेक्स्ट है ऑप्शन सी एंड डी। ऑप्शन सी है 75-year-old क्लाइंट शेड्यूल्ड फॉर द कार्डियक कैथेटराइजेशन, एंड ऑप्शन डी है 50-year-old क्लाइंट कंप्लेनिंग ऑफ द चेस्ट पेन। सो अगेन यहाँ पे चेस्ट पेन का पेशेंट है, सो हो सकता है कि पेशेंट मे और मे नॉट बी स्टेबल। सो इस पेशेंट को आप न्यूली ग्रेजुएट नर्स को हैंड ओवर नहीं करोगे या साइन नहीं करोगे। और यहाँ पे जो ऑप्शन बचा डैट इज अ कार्डियक कैथेटराइजेशन के लिए जो पेशेंट को शेड्यूल करा गया था, सो इस पेशेंट को आप न्यूली ग्रेजुएट नर्स को असाइन कर सकते हो, बिकॉज बिफोर दिस प्रोसीजर्स कुछ चेकलिस्ट होती हैं, कुछ वर्कआउट होता है, वो सारा न्यूली ग्रेजुएट नर्स परफॉर्म कर सकती है, एंड देन दैट नर्स कैन शिफ्ट द पेशेंट टू द कैथ लैब। सो यहाँ पे जो ऑप्शन सही लग रहा है डैट इज ऑप्शन सी। सो विद दिस मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। So next question is, the wife of a client called the clinic and tells the nurse her husband is having a chest pain. So what action should nurse implement first? So अभी first priority action क्या होना चाहिए? Options are instruct the wife to call the ambulance immediately. Option B is tell the wife to have a client chew aspirin. And option C is ask the wife what the client had to eat recently. And option D is request the husband talk to the clinic nurse. Okay, so the answer of this question is the option B. आपने क्लाइंट को च्यू करने के लिए देनी है एस्पिरिन, बिकॉज एज पर द अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन रिकमेंडेशंस इन केस ऑफ द चेस्ट पेन फर्स्टली आपने एस्पिरिन जितनी जल्दी हो सकता है पेशेंट को देनी होती है, बिकॉज जो एस्पिरिन होता है दिस इज द एंटी प्लेटलेट एजेंट, एंड ये प्लेटलेट एग्रीगेशन होने के चांसेस को डिक्रीज कर देता है, एंड दिस एक्चुअली इंटरफेयर विद द थ्रोम्बस फॉर्मेशन। सो जितनी जल्दी हो सकता है आपने उसकी वाइफ को इंस्ट्रक्ट करना है कि पेशेंट को एस्पिरिन प्रोवाइड करो। उसके बाद फिर आपने एम्बुलेंस को कॉल करनी है, एंड आफ्टर डैट यू कैन टेक अ हिस्ट्री फ्रॉम अ वाइफ कि व्हाट हैड द क्लाइंट ईट रिसेंटली, बिकॉज हो सकता है कि जो चेस्ट पेन है वो जीआई इरिटेशन की वजह से भी हो। सो जो लास्ट ऑप्शन है रिक्वेस्ट द हस्बैंड टॉक टू द क्लिनिक नर्स, जब पेशेंट की वाइफ अरेंज कर रही है उसके लिए एस्पिरिन मेडिसिन, देन उस टाइम पे आप पेशेंट से थोड़ी असेसमेंट कर सकते हो। बट एज पर द अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन रिकमेंडेशंस सबसे पहले जितनी जल्दी हो सकता है आपने एस्पिरिन देनी होती है पेशेंट को इन केस ऑफ द चेस्ट पेन। क्लियर? सो विद दिस मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the home health nurse received the phone messages from the agency secretary. So which client the nurse phone first? So सबसे पहले नर्स किस क्लाइंट को कॉल करेगी? So option A is the client is diagnosed with a hypertension and currently उसका BP है 148/92. Okay. So next is the client diagnosed with a cystic fibrosis and has a pulse oximetry reading 93%. So next is the option C, client diagnosed with a congestive heart failure and has a edematous feet. And option D is client diagnosed with a chronic atrial fibrillation and is having a chest pain. सो अगर आपने कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स को अच्छे से पढ़ा होगा देन इस क्वेश्चन को आंसर करना बहुत बहुत ईजी है, बिकॉज इन सारी कंडीशंस में से जो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन यहाँ पे बन रही है डैट इज द क्रॉनिक एट्रियल फिब्रिलेशन एंड प्लस द पेशेंट इज हैविंग अ चेस्ट पेन। सो चेस्ट पेन का क्या मतलब है कि जो एट्रियल फिब्रिलेशन का पेशेंट होता है वो रिस्क पे होता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पल्मोनरी एम्बोलाई। सो यहाँ पे पेशेंट को चेस्ट पेन भी हो रहा है जो कि एक इंडिकेटर है पल्मोनरी एम्बोलाई का, एंड एट्रियल फिब्रिलेशन अपने आप में ही बहुत डेंजरस कंडीशन है। सो यहाँ पे नर्स सबसे पहले कॉल करेगी टू द पेशेंट हु इज हैविंग अ एट्रियल फिब्रिलेशन एंड चेस्ट पेन, उसके बाद बाकी सारी कॉल्स आएंगी, बिकॉज सिस्टिक फिब्रोसिस में 93% सैचुरेशन ऑल्दो थोड़ी कम है, डिक्रीज है, बट सिस्टिक फिब्रोसिस में आप इतना एक्सपेक्ट कर सकते हो। और कंजस्टिव हार्ट फेलियर वाले पेशेंट में भी एडिमेटस फीट होते हैं, आप ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो इन दोनों में से अगर ज़्यादा सीवियर है तो वो है एट्रियल फिब्रिलेशन। सो ऑप्शन ए में जो है पेशेंट का बीपी 148/92 है, कोई बहुत ज़्यादा सीवियर केस नहीं है यहाँ पे। सो राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन D. So with this moving toward the next question.
So next question is, a client is diagnosed with the end stage congestive heart failure and nurse find the client lying in a bed and is having a shortness of breath and is unable to talk and is having a buccal cyanosis. So which intervention the nurse should implement first? So firstly अब nurse क्या करेगी? Patient is having a shortness of breath. So options are, assess the client in a sitting position, assess the vital signs of a patient, then inform the healthcare provider. ऑप्शन डी इज अस्कल्टेट दी क्लाइंट लंग साउंड. सो बहुत बार अपनी रिसेंट वीडियोस में मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि इफ़ द पेशेंट इज हैविंग एनी कार्डियोपल्मोनरी प्रॉब्लम एंड इज हैविंग अ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, देन फर्स्टली यू हैव टू प्रोवाइड द फॉलोअर पोजीशन टू द patient, because this position decreases the workload of heart and also promote the lung expansion. So patient को breathe करने में ease होगी when you provide the follower or sitting position to the पेशेंट. सो अगर सिटिंग पोजीशन फॉलोअर पोजीशन प्रोवाइड करने के बाद भी पेशेंट की कंडीशन ठीक नहीं हो रही, देन यू हैव टू इन्फॉर्म दी हेल्थ केयर प्रोवाइडर एंड ऑल्सो यू हैव टू चेक दी पेशेंट वाइटल साइंस एंड अस्कल्टेट दी क्लाइंट लंग साउंड. बट सबसे पहले जो इम्प्लीमेंट करनी है, जो फर्स्ट प्रायोरिटी इंटरवेंशन होनी चाहिए, दैट इज टू प्रोवाइड दी फॉलोअर पोजीशन टू दी पेशेंट. So next question is, the cardiac nurse received the lab result on a following clients. So which client warrants the immediate intervention from a nurse? So client who has a INR of 2.8. So INR 2 to 3 तक normal है. Next is a client who has a serum potassium level 3.8. So 3.5 to 5.1 milliequivalent per liter तक होता है normal serum level. So this is a normal. So next is the client who has a serum digoxin level 2.6 nanogram per ml. So this is the case of the digoxin toxicity. अब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे कि नॉर्मल डाइजॉक्सिन थेराप्यूटिक रेंज कितनी होती है, ठीक है. एंड लास्ट इज द क्लाइंट हु हैज़ अ HbA1c 6%. सो अगर 8% से कम है देन क्या है, वो ठीक है, ठीक है. HbA1c क्या होती है कि पेशेंट का प्रीवियस 3 मंथ का ग्लूकोज लेवल कितने नॉर्मल रेंजेस में है या नहीं है, वो हम इससे देखते हैं. अगर 6% है तो वो नॉर्मल है. सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा डैट इज ऑप्शन सी. सो इस पेशेंट के लिए इमीडिएट इंटरवेंशन चाहिए बिकॉज पेशेंट इज हैविंग अ डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी. So with this, moving toward the next question. So next question is, a cardiac nurse is teaching the client diagnosed with the congestive heart failure. So which teaching intervention should nurse discuss with the client? Select all that apply. So जितने भी intervention आपको सही लग रहे हैं वो सारे आपने select करने हैं. Option A is notify the healthcare provider if the client gain more than 2 lb in one day. सो अगर एक दिन में 2 पाउंड से ज़्यादा क्लाइंट वेट गेन कर रहा है देन आपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर को नोटिफाई करना होता है बिकॉज कंजस्टिव हार्ट फेलियर का पेशेंट है एंड अगर वेट गेन ज़्यादा हो रहा है इसका मीन्स के फ्लूइड रिटेंशन हो रही है. सो नेक्स्ट इज कीप द हेड ऑफ द बेड एलिवेटेड व्हेन स्लीपिंग. सो दिस इज द अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन. हेड एंड क्यों आपने एलिवेट करना होता है, सो डैट के पेशेंट को ब्रीदिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए. So next is take the loop diuretic once in a day before going to the sleep. So this is the inappropriate intervention because before going to sleep कभी भी diuretics नहीं देने होते, नहीं तो पेशेंट क्या है बार बार उसको यूरिन पास आउट करने के लिए जाना पड़ेगा एंड स्लीपिंग डिस्टर्बेंसेस होंगी. सो ऑप्शन सी यहाँ पे गलत है. सो नेक्स्ट है टीच द क्लाइंट विच फूड्स आर हाई इन सोडियम एंड शुड बी अवॉइडेड. या सो इट्स ट्रू, अगर पेशेंट सोडियम हाई डाइट लेगा, सोडियम रिच डाइट लेगा तो क्या होगा, फ्लूइड रिटेंशन उतना ज़्यादा होने के चांसेस रहेंगे. सो इसलिए यू हैव टू इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू रिस्ट्रिक्ट द सोडियम रिच डाइट. ओके, सो यहाँ पे ऑप्शन डी भी ठीक है. And option E is perform the isotonic exercises at least 1 a day. So you can instruct the patient to perform the isotonic exercises because this will help in maintaining the tone of the body muscles. So here the option A, B, D and E correct, but option C is the inappropriate intervention. So let's move to the next question. A client who has been admitted to the emergency department with report of the chest pain for past 2 hours. So patient को chest pain हो रही है from past 2 hours and there are no clear changes on the ECG. ECG में कोई clear change नहीं है and the nurse should expect which lab test be more specific indicator of the myocardial infarction.
सो अगर मायोकार्डियल इन्फेक्शन का पेशेंट है तो कौन से स्पेसिफिक इंडिकेटर्स हो सकते हैं, यू हैव टू सिलेक्ट दी स्टेटमेंट्स। सो सिलेक्ट ऑल डेट अप्लाई वाला क्वेश्चन है। ऑप्शन ए इज एलिवेटेड पोटाशियम लेवल। सो पोटाशियम लेवल अगर एलिवेट है देन कोई वो स्पेसिफिक इंडिकेटर नहीं है मायोकार्डियल इन्फेक्शन का। डिक्रीज मायोग्लोबिन लेवल, सो दिस इज नॉट अ स्पेसिफिक इंडिकेटर ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन। सो नेक्स्ट इज एलिवेटेड क्रिटेनाइन काइनेज, सो CK लेवल इंक्रीज होता है इफ द पेशेंट इज ऑफ MI। सो नेक्स्ट इज डिक्रीज WBC काउंट and elevated troponin level. So elevated troponin level is a specific indicator of the myocardial infarction. So here the two options are correct, elevated creatinine kinase and elevated troponin level. So both these value will be increased in case of the myocardial infarction case. So with this, moving toward the next question. A client is scheduled for discharge after the coronary artery bypass grafting. CABG हुआ पेशेंट का एंड अभी उसको डिस्चार्ज करना है एंड पेशेंट इज रिपोर्टिंग द न्यू ऑनसेट ऑफ द अनोरेक्सिया एंड नोजिया। सो पेशेंट को अनोरेक्सिया एंड नोजिया हो रहा है एंड क्लाइंट न्यू मेडिकेशन जो अभी उसको दी हैं डेट इज द डाइजॉक्सिन, मेटोप्रोलॉल एंड फ्लोसेमाइड, and the nurse plans to report this finding to the healthcare provider after checking the result of which lab test drawn earlier in the morning. So अभी पेशेंट का कोई लैब टेस्ट हुआ था मॉर्निंग में एंड नर्स कौन सी वैल्यू अभी हेल्थ केयर प्रोवाइडर को रिपोर्ट करेगी। ऑप्शन है पोटाशियम लेवल, सोडियम लेवल, क्रिटिनिन काइनेज लेवल एंड डाइजॉक्सिन लेवल। सो यहाँ पे 3 मेडिकेशंस न्यूली एडेड करी गई हैं, डाइजॉक्सिन है, मेटोप्रोलॉल है एंड फ्लोसेमाइड है और पेशेंट को अभी हुआ है मॉर्निंग में अनोरेक्सिया एंड नोजिया। सो नोजिया, वॉमिटिंग एंड अनोरेक्सिया, सो दिस इज अ स्पेसिफिक इंडिकेशन ऑफ द डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। सो अभी मॉर्निंग में ही पेशेंट के लैब इन्वेस्टिगेशंस हुए हैं एंड नर्स यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली नोटिस करेगी डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी बिकॉज जो अनोरेक्सिया एंड नोजिया है दीज आर द स्पेसिफिक इंडिकेशंस एंड स्पेसिफिक साइंस ऑफ द डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। सो हियर द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a nurse is caring for a client with the history of the renal failure and new myocardial infarction. So the nurse who is reviewing the lab findings should call the healthcare provider to report which result. Options are potassium level 5 milliequivalent per liter, so this is within the normal range. So next is a sodium level 145 milliequivalent per liter, ये भी normal है and calcium level है यहाँ पे 7 mg per dl. सो कैल्शियम लेवल यहाँ पे डिक्रीज है। सो जो नॉर्मल सीरम कैल्शियम लेवल होता है डैट इज द 8.5 to 10.5 mg per dl. सो यहाँ पे 7 है, सो डिक्रीज है एंड रीनल फेलियर में, क्रॉनिक किडनी डिजीज में हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलता है। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन ऑप्शन सी होगा एंड डाइजॉक्सिन लेवल यहाँ पे है 0.8 नैनोग्राम पर ml. सो दिस इज विद इन द नॉर्मल रेंज एज जो थेराप्यूटिक डाइजॉक्सिन रेंज होती है वो होती है 0.5 to 2 नैनोग्राम पर ml. सो यहाँ पे राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन सी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a nurse has finished reviewing the shift report on a cardiac unit and the nurse should plan to see which assigned client first. So option A है client with the hypertrophic cardiomyopathy. Option B है client who had a cardiac catheterization and will be ambulating for a first time. Option C है client who is taking the antibiotics for the endocarditis and has a sudden dyspnea and anxiety. And option D है a client who is recovering from the CABG surgery and temperature है उसका 101 degree Fahrenheit. Okay, so here the answer of this question is the option C, a patient who is having an endocarditis and develop the sudden dyspnea and anxiety. सो क्यों इस पेशेंट को प्रायोरिटी पे हमने रखा है, बिकॉज एंडोकार्डाइटिस में आपको पता होना चाहिए कि देर इज द रिस्क ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द थ्रोम्बस फॉर्मेशन एंड दैट थ्रोम्बस फॉर्मेशन कैन लीड टू द पल्मोनरी ओडिमा और उसका जो साइन होता है दैट इज द सडन डिस्निया एंड एंजाइटी जो कि पेशेंट में आ रहा है। इसलिए यहाँ पे जो सबसे प्रायोरिटी वाला केस बनेगा दैट इज द पेशेंट हु इज हैविंग एंडोकार्डाइटिस एंड इज डेवलपिंग अ साइन ऑफ द पल्मोनरी ओडिमा और थ्रोम्बस फॉर्मेशन. So with this, moving toward the next question. So next question is, so the next question is the client with the hypertension is being treated with the metoprolol.
hydrochlorothiazide and captopril. Other scheduled medication include the Dicocet and multivitamin, and the client current BP is 124/86 mm of mercury, and अभी pulse rate बहुत decrease है, pulse rate है 48. So which scheduled medication dose should nurse administer? Select all that apply. So जितने भी nurse medication दे सकती है वो सारे आपने सिलेक्ट करने हैं. सो मेटाप्रोलॉल दे सकते हो. मेटाप्रोलॉल कौन सी ड्रग होती है? इट इज़ द बीटा ब्लॉकर. और बीटा ब्लॉकर क्या करते हैं? ब्रेडिकार्डिया कर सकते हैं. एंड पेशेंट का अभी पल्स रेट है 48 जो कि ऑलरेडी डिक्रीज है ये. ठीक है, तो यहाँ पे मेटाप्रोलॉल तो आप नहीं दे सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट है कैप्टोप्रिल. कैप्टोप्रिल क्या है? इट इज़ अ ACE इनहिबिटर. ACE इनहिबिटर है एंड दिस इज अ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग. सो ये ड्रग आप पेशेंट को दे सकती हो बिकॉज ये हार्ट रेट को डिक्रीज नहीं करेगी. सो नेक्स्ट है हाइड्रोक्लोरोथायाजिड विच इज़ अ डायूरेटिक ड्रग. सो इसका भी हार्ट रेट पे कोई इफेक्ट नहीं जाएगा. एंड नेक्स्ट जो ड्रग है मेडिकेशन है दैट इज अ स्टूल सॉफ्टनर. सो मीन्स के पेशेंट को अभी कॉन्स्टिपेशन होगी. सो जब कॉन्स्टिपेशन होती है तो पेशेंट क्या है? वल्सल्वा मैनर परफॉर्म कर सकता है. मीन्स कि अपनी ब्रेथ को होल्ड करता है एंड उससे बॉवल मूवमेंट इंक्रीज होती है, सारा प्रेशर उस साइड को जाता है. सो उस टाइम पे पल्स रेट डिक्रीज होता है बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिपेशन. सो स्टूल सॉफ्टनर देना यहाँ पे बिल्कुल सही इंटरवेंशन होगा. एंड मल्टीवाइटामिन का एज सच हार्ट रेट पे कोई इफेक्ट नहीं आता है. सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन बनेगा बी होगा, सी होगा, डी होगा एंड ई होगा. Okay, so with this moving toward the next question. So next question is, a nurse is discharging to a home client with the new diagnosis of the atrial fibrillation. So the nurse should explain that the onset of which symptom is most important to report to the healthcare provider. So options are irregular pulse, fever, fatigue or hemoptysis. So here the right option is option D, hemoptysis, because hemoptysis is an indication of the pulmonary edema. एंड मैंने पहले भी आपको एक क्वेश्चन में ऊपर बताया कि एट्रियल फिब्रिलेशन का जो पेशेंट होता है ही इज एट अ रिस्क ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द पल्मोनरी एडिमा. एंड पल्मोनरी एडिमा एक बहुत लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है एंड इसका इमीडिएट ट्रीटमेंट होना चाहिए, अदरवाइज दिस कैन लीड टू द डेथ ऑफ द पेशेंट. सो यहाँ पे राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन डी, हीमोप्टाइसिस. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59. अ क्लाइंट विद एंडोकार्डाइटिस develop the sudden leg pain with pallor, tingling and loss of the peripheral pulses. So what should the nurse initial action? So nurse का initial action क्या होना चाहिए? ऑप्शंस हैं एलिवेट द लेग अबव द लेवल ऑफ हार्ट. बिल्कुल नहीं ऐसा करना है, नेक्रोसिस और हो सकता है. नेक्स्ट इज रैप द लेग इन अ लूज ब्लैंकेट. सो दिस इज अ करेक्ट इंटरवेंशन. ऐसा करने से क्या होगा? उस एरिया को, उस साइड को क्या है? वार्मथ मिलेगी. ठीक है. सो नेक्स्ट है नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर अबाउट द फाइंडिंग्स. उसके बाद आपने नोटिफाई करना है हेल्थ केयर प्रोवाइडर को. एंड ऑप्शन डी है परफॉर्म द पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस टू स्टिमुलेट द सर्कुलेशन. सो दिस कैन लीड टू द फर्दर नेक्रोसिस ऑफ द टिश्यूज. सो इसको अभी परफॉर्म नहीं करना है. सो यहाँ पे राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन बी. Okay, so with this moving toward the next question. So the last question of today's video is, which client assigned to a nurse is most at a risk of development of the deep vein thrombosis? So कौन सा patient risk पे होगा for the development of the DVT? Options are 63-year-old client post CVA on the anticoagulant therapy. So anticoagulant therapy उसको चल रही है, so patient DVT के risk पे नहीं होगा. So next is a 40-year-old woman who smoke and use the oral contraceptives. So आपको पता होना चाहिए कि जितने भी oral contraceptives होते हैं प्लस अगर वो woman smoke कर रही है then she is at a risk of development of the DVT. Clear? So next is a 41-year-old female who underwent the laparoscopic cholecystectomy. So laparoscopic cholecystectomy हुई है, so इतनी immobility नहीं होएगी. immobility नहीं होएगी तो deep vein thrombosis होने का इतना रिस्क नहीं होगा. एंड ऑप्शन डी इज 30-year-old client who is a 1 week postpartum. सो अभी 1 week का postpartum पीरियड हो चुका है और रिस्क रिड्यूस हो जाएगा एट दिस टाइम. सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा डेट इज ऑप्शन बी. ओके, सो डेट्स ऑल अबाउट द टुडेज क्वेश्चन. सो आज की वीडियो में थोड़े से फार्मा के क्वेश्चंस थे एंड बाकी जो मोस्टली थे वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के क्वेश्चंस थे. सो आई होप आपने कुछ न्यू सीखा होगा कि कैसे हम जो केसेस होते हैं उनको डेलीगेट करते हैं, कैसे हम प्रायोरिटाइजेशन करते हैं केसेस की. एंड ऐसे क्वेश्चंस जो एनक्लेक्स का एग्ज़ाम होता है या जितने भी फॉरेन के नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं या रजिस्ट्रेशन एग्ज़ाम होते हैं उनमें ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं.
एंड अभी रिसेंटली बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ने भी ऐसे क्वेश्चंस पूछने स्टार्ट कर दिए हैं, जो लास्ट एग्जाम्स हुए हैं ऐसे क्वेश्चंस ही आते हैं. सो आई होप आप इन वीडियोस के थ्रू कुछ नया सीख रहे होंगे. एंड अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगती हैं देन फॉर माई सपोर्ट यू कैन लाइक द वीडियो, यू कैन शेयर द वीडियो, एंड फॉर माई मोटिवेशन you can provide your feedback in the comment section as well. So okay, so with this I'm ending this video. So we'll see you in next video. So stay connected with Nursing Scope and thank you so much for watching.